and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss one of the very important rule related to the general financial rule. It is Rule 149. It is Government e-Marketplace related to the GEM. It is latest one and updated one. In this part, I will discuss 10 MCQs and also the different procedure and different amount to procure through GEM. This rule is very important one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So definitely the session would be interesting one. So with patience, actually you listen this video, and definitely you can get exam oriented questions. Those type of questions basically coming in the examination nowadays. So 10 MCQs, and also you can get complete information about GEM, basically rule 149, right? So you see my contact WhatsApp number, it is 8327782034. If you want to join my Telegram channel, link is there, t.me/papi2034. So join my Telegram channel so that you can get my up-to-date videos. So now I am going to start Rule 149 related to the government e-marketplace. You see question number one. Question number one, it is given GEM dash will ensure adequate publicity, including periodic advertisement of the items to be procured through GEM for the prospective suppliers. So four options are there: special purpose company, special purpose enterprise, special purpose vehicle, special purpose limited. So GEM dash, you know that it is GEM SPV. GEM SPV, it is special purpose vehicle. Actually, it is a private limited company, and the government has given autonomous status to GEM SPV. GEM SPV, GEM special purpose vehicle, this company, it is functioning under Ministry of Commerce, right? The question is coming, it is functioning under Ministry of Commerce, and GEM SPV actually registered the prospective suppliers. Check their credentials. Credentials means actually their manufacturing ability, their past performance, their post sale service, quality of the product, different specification or features of the product, delivery status. So everything actually GEM SPV actually check the suppliers and register them, check the credential, and periodically also GEM SPV make advertisement so that different government entities they must aware about the procedure to procure the product through the GEM. So now it is mentioned that it is mandatory for all the government entities to procure the goods and services available on GEM. यदि GEM में अवेलेबल है, सो ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है जो गवर्नमेंट एंटिटीज को वो GEM से खरीदना है. यदि GEM में नहीं है तब वो आउटसाइड में जा सकते हैं, जो जनरल फाइनेंशियल रूल में है, जो अदर है, जैसे एडवर्टाइज टेंडर है, लिमिटेड टेंडर है, ओपन टेंडर इंक्वायरी है, कि लोकल परचेज कमिटी है, तो ये सब जाएंगे. मगर यदि GEM में है, इट इज कंपल्सरी एंड इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज टू प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू GEM. ओके, इफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन GEM, राइट? सो आपको आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 1, बीट सी इज द आंसर. इट इज GEM SPV, special purpose vehicle who manage and develop the government e-marketplace, right? Question number 2, in GEM up to dash the commodity can be procured through any of the available suppliers.
up to how much amount actually the government entities can procure the commodities from any available suppliers on JAM. Okay, so direct purchase, it is a direct purchase. So direct purchase, it means the government procuring entity, the concerned government procuring entity can purchase the commodity up to rupees 50,000. Okay, so it is coming under direct purchase. Okay, so the government, the concerned government entity procure the value of goods up to rupees 50,000. Okay, from any supplier available on JAM, right? It is rupees 50,000. It is a direct purchase procedure. I will discuss in subsequent time. So option B is the correct answer. From any supplier, the government entity can purchase the value of commodity up to rupees 50,000, right? Then question number 3. Question number 3, which of the above statements is or are incorrect one? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, जो गलत स्टेटमेंट है उसको डिटेक्ट करना है. मैं इसको अंडरलाइन कर दिया. सो 3 स्टेटमेंट्स गिवन. Above rupees 50,000 and up to rupees 10 lakh through the JAM seller having lowest price amongst the available sellers of at least 3 different manufacturers. Second statement, above rupees 50,000 and up to rupees 5 lakh through the JAM seller having lowest price amongst the available seller of at least 3 different manufacturers. Third statement, above rupees 50,000 and up to rupees 10 lakh through the JAM supplier having lowest price amongst the available sellers of at least 4 different manufacturers. ये 3 statements given. आपको देखिए एक सेकेंड मेथड है L1 comparison procedure. L1 comparison. L1 means lowest. So comparison procedure. Okay, L1 comparison procedure में क्या है? Above rupees greater than, ये है suppose the value of the goods is greater than rupees 50,000 and up to rupees 10 lakh, right? Value of the goods आपको रिमेंबर करना है. Up to 50,000 any supplier, the government entity can purchase the commodity up to value rupees 50,000 from any supplier. यदि जो वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000 एंड अप टू रुपीज 10 लाख, हम L1 कंपैरिजन को जाएंगे. और L1 का जो लोएस्ट, L1 मींस लोएस्ट, इसमें क्या है? एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को लेना है और कंपेयर करना है. एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स को लेना है और उनका प्राइस को कंपेयर करना है, चेक करना है क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टेटस, उसको चेक करना है और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसी से ही प्रोक्योर करना है. ठीक है, तो ये L1 कंपैरिजन प्रोसीजर है. तो उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. अब देखिए जो L1 कंपैरिजन में अभी बताया, द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ग्रेटर देन रुपीज 50,000 एंड अप टू रुपीज 10 लाख. ठीक है, सो आप चूज कर लीजिए एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और उनका क्वालिटी, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी, जो फीचर्स, जो स्पेसिफिकेशन है और डिलीवरी स्टेटस को आप चेक कीजिए और जिसका लोएस्ट होगा उसी से आप प्रोक्योर कीजिए. ठीक है, ये है. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है. वो दिया है अबव रुपीज 50,000 एंड अप टू रुपीज 5 लाख. नो, अप टू रुपीज 10 लाख. ठीक है, ये गलत है. नेक्स्ट वन क्या गलत है? ऑफ एटलीस्ट 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स दिया है, नहीं, एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. तो जो स्टेटमेंट 1 है वो ओनली करेक्ट है, अदर 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. तो आपको ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अभी समझ में आ गया. जो सेकेंड मेथड है आपको याद रखना है, यदि वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ग्रेटर देन रुपीज 50,000 है एंड अप टू 10 लाख है, हम L1 कंपैरिजन में जाएंगे.
एटलीस्ट 3 मैन्युफैक्चरर्स को, 3 सेलर्स को हम चूज करेंगे और उनका क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टाटस को चेक करेंगे और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे हम प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, सो एटलीस्ट 3 ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 को लेके आपको कंपेयर करना है। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड अदर 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वन, वही वो पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, above rupees 50,000 and up to rupees 10 lakh through the JM seller having lowest price amongst the available suppliers of at least 3 different manufacturers on JM meeting the, तो ये भी L1 कंपैरिजन में अभी बताया कि ग्रेटर देन रुपीज 50,000 एंड अप टू रुपीज 10 लाख, यदि वैल्यू ऑफ द कमोडिटी है ग्रेटर देन 50,000 एंड अप टू 10 लाख है, हम L1 कंपैरिजन में जाएंगे। ठीक है, सो L1 ये अगेन में लिख देता हूं, ये L1 मीन्स लोएस्ट, तो ये मेथड जो है, प्रोसीजर है L1 कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें एटलीस्ट आपको 3 मैन्युफैक्चरर्स को लेना है, एटलीस्ट 3 सेलर्स को लेना है और उनका 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये उनका क्या क्या चेक करना है, एक है क्वालिटी, आपको क्वालिटी को चेक करना है, फीचर्स देखना है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन को चेक करना है और डिलीवरी स्टाटस, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टाटस। जो एटलीस्ट 3 सेलर्स को लेंगे और कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, क्या कंपेयर करेंगे, फीचर्स ऑफ द कमोडिटी, जो स्पेसिफिकेशन क्या है, कमोडिटी का क्या क्या फीचर्स है, क्या कमोडिटी का क्या क्या ट्रेड्स है, और थर्ड डिलीवरी स्टाटस, कि इसमें कौन सा सेलर एक्चुअली प्रोडक्ट को डिलीवरी करेगा टाइमली। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी स्टाटस। ठीक है, अदर बहुत कुछ चीज है, आप देख सकते हो, जैसे पोस्ट सेल सर्विस, सेल्स के बाद सपोज वो क्या सर्विस देगा, वारंटी गारंटी। ठीक है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उसका फाइनेंशियल स्टाटस, ये सब बहुत कुछ चीज है, मगर आपको 3 चीज के ऊपर फोकस करना है। ओके, एटलीस्ट 3 सेलर्स को लेना है और उनका क्वालिटी, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी स्टाटस, ये तीनों को आपको कंपेयर करना है और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे प्रोक्योर करना है। वही क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आपको चेक करना है, मैं अभी बताया था। तो क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। अदर बहुत कुछ क्रीडेंशियल्स है, अदर कुछ आप चेंज कर सकते हो कि पोस्ट सेल सर्विस है, कि इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टाटस क्या है, उनका पास्ट सर्विस क्या है, बहुत कुछ चीज है, मगर ये 3 चीज आपको जो एटलीस्ट 3 सेलर्स को आप लेंगे तो आपको क्या चेक करना है, उन तीनों सेलर, एटलीस्ट आप 3 लेंगे, 3 से ज्यादा ले सकते हो मगर एटलीस्ट आपको 3 लेना है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को चेक करना है, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट को देखना है और डिलीवरी स्टाटस को देखना है और जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे प्रोक्योर करना है। ठीक है, तो ये अमाउंट को याद रखिए, ये L1 कंपैरिजन मेथड है। इफ द जो भी कमोडिटी को आप परचेज करना चाहते हो उसका वैल्यू मोर देन 50,000 है एंड अप टू रुपीज 10 लाख है। ठीक है, हम L1 कंपैरिजन में जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, again you see which of the following statements is or are correct one। इस तरीके आजकल जो क्वेश्चन पैटर्न है, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको डिटेक्ट करना है। ओके, सो नाउ इट इज एक्चुअली इन दिस पैटर्न क्वेश्चंस आर कमिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, करेक्ट, इनकरेक्ट। सो यू रीड द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, and in this question just to detect the correct statement, right? Above rupees 10 lakh through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids using only online bidding on JM. Second statement, above rupees 10 lakh through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids using online bidding or reverse auction tool provided on JM. The invitation for the online auction will be available to the limited sellers
रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल ऑफ जेम। तो आप ये याद रखिए, सपोज जो वैल्यू ऑफ द कमोडिटी है ग्रेटर देन ₹10 लाख है, तो आप यदि इफ द जो कमोडिटी को आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका वैल्यू ग्रेटर देन ₹10 लाख है, ये थर्ड मेथड आ जाएगा। तो थर्ड मेथड क्या है? एक बिडिंग मेथड है, ऑनलाइन बिडिंग, ठीक है, ऑनलाइन बिडिंग, और आपके लिए ऑप्शन है रिवर्स ऑक्शन टूल, ठीक है, रिवर्स ऑक्शन टूल, ये मेथड है। यदि वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ग्रेटर देन ₹10 लाख है, आप ऑनलाइन बिडिंग में जाइए और रिवर्स ऑक्शन टूल में जाइए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो भी सप्लायर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन टूल में। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड सप्लायर्स को ये फैसिलिटी मिलेगा, कोई भी सप्लायर चाहेगा, कोई भी सेलर चाहेगा वो ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन टूल में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमको करेक्ट स्टेटमेंट में बता दिया, ग्रेटर देन ₹10 लाख है वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, आप प्रोक्योर करना चाहते हो तो हम ऑनलाइन बिडिंग में जाएंगे और रिवर्स ऑक्शन टूल में जाएंगे। और जो भी सेलर्स है बेसिकली जेम पोर्टल में, वो जो भी चाहेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई किसी के लिए भी प्रोहिबिशन नहीं है। ऐसा नहीं कोई लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स एक्चुअली ओनली दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल। कोई भी एनी टाइप ऑफ सप्लायर if they are ready to participate in online bidding or reverse auction tool, okay, they are allowed, right? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो दिया है आप देख लीजिए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन गलत है क्योंकि कहां पर ओनली ऑनलाइन बिडिंग दिया है, ओनली नहीं, इसमें ऑनलाइन बिडिंग अबव ₹10 लाख, जो भी कमोडिटी गवर्नमेंट एंटिटी प्रोक्योर करना चाहता है, जो भी कमोडिटी उसका वैल्यू है मोर देन ₹10 लाख, ग्रेटर देन ₹10 लाख, तब उसके लिए दो ऑप्शन है, ऑनलाइन बिडिंग में जाएगा नहीं तो रिवर्स ऑक्शन टूल में जाएगा। मगर यहां पर यूजिंग ओनली ऑनलाइन बिडिंग दिया है, ये गलत है क्योंकि ऑनलाइन बिडिंग है, रिवर्स ऑक्शन टूल है, ठीक है। यहां पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, वो क्लियरली दे दिया कि थ्रू द सप्लायर हैविंग लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड आफ्टर मैंडेटोरली ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल प्रोवाइडेड ऑन जेम, ठीक है, ये करेक्ट है। थर्ड दिया है द इन्वाइटेशन फॉर द ऑनलाइन ऑक्शन विल बी अवेलेबल टू द लिमिटेड सप्लायर्स, ये गलत हो गया। मैं अभी बताया था कोई भी सेलर वो चाहता है ऑनलाइन बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि रिवर्स ऑक्शन टूल में पार्टिसिपेट करेगा, कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि लिमिटेड सप्लायर्स कोई ओनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पर करेक्ट दिया है मींस ओनली 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड मेथड है, यदि वैल्यू ऑफ द कमोडिटी ग्रेटर देन ₹10 लाख है तो ऑनलाइन बिडिंग में जाएंगे और रिवर्स ऑक्शन में जाएंगे, ठीक है। और कोई भी सप्लायर चाहेगा, कोई भी सेलर चाहेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन टूल में, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि क्वालिटी, डिलीवरी स्टाटस, स्पेसिफिकेशन ये सब चेक किया जाएगा और जिसका प्राइस एक्चुअली लिस्ट होगा उसी से ही प्रोक्योर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है। यहां पर थोड़ा रिवर्स ऑक्शन को मैं जाता हूं, तो रिवर्स ऑक्शन क्या है, रिवर्स ऑक्शन में क्या है, ओनली वन बायर है, वन बायर है, नंबर ऑफ सेलर्स है, वन बायर मोर सेलर्स, ठीक है। इसमें जो मोर सेलर्स, ओनली वन बायर है, मोर सेलर्स, तो इसमें प्राइस कम होता जाएगा, जब बोली लगेगा प्राइस कम होता जाएगा। ऑनलाइन बिडिंग वही है, यहां पर एक ही बायर है, ये नॉर्मल ऑक्शन है। नॉर्मल ऑक्शन में क्या है, बेसिकली एक सेलर है, नंबर ऑफ बायर्स है, तो वहां पर प्राइस बढ़ता है। नॉर्मल ऑक्शन में, नॉर्मल ऑप्शन में एक ही आदमी बेचना चाहता है और सो मेनी बायर्स आर देयर, दे वांट टू परचेज, तो वहां पर प्राइस बढ़ता है। मगर यहां पर क्या है, ओनली वन बायर है, मोर सेलर्स है, तो सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है। ये जो ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल में एक ही बायर है मगर बहुत सेलर्स है, तो वहां पर बार्गेनिंग होकर प्राइस कम होता रहता है और जिसका लिस्ट प्राइस होगा उसी से प्रोक्योर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शैल वर्क आउट देयर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डैश एज पर देयर रिक्वायरमेंट और सुइटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट। तो जब बजट एस्टिमेट प्रिपेयर होगा उस समय जो कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो वर्कआउट करेंगे
कि जो प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो किस मॉडल में वो जाएंगे। ठीक है, जो बजट एस्टिमेट, क्योंकि बजट एस्टिमेट वो बोलते हैं कि हमको इतना बजट चाहिए और इसी मॉडल से हम गुड्स प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, थ्रू जेम। तो कौन सा मॉडल में वो जाएंगे, तो इसमें आप दिया है 4 ऑप्शंस, ओपेक्स मॉडल, कैपेक्स मॉडल, आइदर ओपेक्स और कैपेक्स मॉडल, और नाइदर ओपेक्स नॉर कैपेक्स मॉडल। मैं थोड़ा, ओपेक्स मॉडल क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करो। ओपेक्स मॉडल ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर। कैपेक्स मॉडल क्या है, लॉन्ग टर्म, जो भी परचेज किया जाएगा वो मोर देन 1 ईयर यूज होगा, जो भी असेट्स इक्विपमेंट्स इसमें आता है। कैपेक्स मॉडल में आपका जो असेट्स आता है, इक्विपमेंट्स आता है, मशीनरी आता है, ये सब कैपेक्स मॉडल में, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हम यूज करेंगे। ऑपरेशनल ओपेक्स मॉडल है, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम यूज करेंगे, जो डे टू डे हमारा जो गुड्स हमको चाहिए, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, एक्सपेंस के लिए हम यूज करेंगे, वो ओपेक्स है। कैपेक्स बेसिकली जो जो इक्विपमेंट्स है, कि बिल्डिंग है, कि आपका मशीनरी है, जिसको लॉन्ग टर्म हम यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे कि नहीं। तो इसमें जो मॉडल रहेगा आपको याद रखना, आइदर ओपेक्स और कैपेक्स मॉडल। आंसर इज बिट सी, आइदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। तो ऑपरेशनल ओपेक्स जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जो भी गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसको डे टू डे हम यूज करेंगे। और जो कैपेक्स में बताया कि मशीनरी की इक्विपमेंट्स, जिसको हम मोर देन 1 ईयर यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो जब कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो वर्कआउट करेगा, एक प्रोक्योरमेंट प्लान करेगा और बजट एस्टिमेशन गवर्नमेंट को देगा, वो आइदर ओपेक्स और कैपेक्स मॉडल को जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट shall project their annual procurement plan of goods and services on GEM portal within dash of budget approval। अच्छा, अभी बजट अप्रूव हो गया, तो बजट अप्रूव होने से सपोज बजट अप्रूवल का कितना दिन के अंदर प्रोक्योरमेंट प्लान किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बजट एस्टिमेशन दे दिया गया, बजट अप्रूव हो गया, बजट अप्रूव का कितना दिन के अंदर प्रोक्योरमेंट प्लान करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या गुड्स आप प्रोक्योर करेंगे, जो जो गुड्स, एक्चुअली दो टाइप ऑफ गुड्स आर क्विंटेसेंशियल एंड वेरी एसेंशियल एंड नीडी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द इंस्टीट्यूशन और फॉर द डिपार्टमेंट। सो जब बजट अप्रूवल हो जाएगा, उसका कितना दिन के अंदर आपको प्रोक्योरमेंट प्लान करना है, जो भी गुड्स आप प्रोक्योर करेंगे जेम से। तो यहां पर ऑप्शन 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 30 डेज है। तो बजट आपको याद रखना है, जब बजट अप्रूवल हो जाएगा तो उसका 30 डेज के अंदर, ठीक है, उसका 30 डेज के अंदर ऑप्शन डी, आपको प्रोक्योरमेंट, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान करना है, पूरा एनुअल प्लान करना है कि किस किस टाइम में कितना कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप प्रोक्योर करोगे जेम से। ठीक है, तो बजट अप्रूवल का 30 डेज के अंदर आपको एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान करना है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अगेन नीचे देखिए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर दिया, यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दिया है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन। फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट बायर्स में ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the business analytics tools available on GEM, including the last purchase price on GEM, डिपार्टमेंट्स ओन लास्ट परचेज प्राइस एटसेट्रा। ये करेक्ट है, आपको याद रखना है, एक ये याद रखिए, बिजनेस एनालिटिक्स टूल है, एक बिजनेस एनालिटिकल टूल है, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर जो पर्टिकुलर कमोडिटी आप ले जाइए, आप प्रोक्योर किया था जेम से, उसका लास्ट परचेज प्राइस जेम में क्या था, प्रीवियस ईयर उसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था, और डिपार्टमेंट किस प्राइस से उसको प्रोक्योर किया था। तो आप बिजनेस एनालिटिक टूल में जाइए, इसको बोलते हैं, देखिए यहां पर दे दिया, बिजनेस एनालिटिक्स टूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टूल से क्या पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर कंसर्न कमोडिटी आप प्रोक्योर किए थे प्रीवियस ईयर, तो उसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था जेम में, और डिपार्टमेंट और आपका इंस्टीट्यूशन की, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस प्राइस में उसको प्रोक्योर किया था, यह पता चल जाएगा बिजनेस एनालिटिक टूल से। ठीक है, तो ये करेक्ट है।
ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड into small quantities to make piecemeal purchases to avoid procurement through L1 buying, bidding और रिवर्स ऑप्शन ऑन जेम। आप याद रखिए डिमांड फॉर गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप एक बार डिमांड दे दिया, ओके, जो डिमांड फॉर एस्टिमेशन ऑफ द कमोडिटी दे दिया उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसको पीस पीस नहीं कर सकते कि मैं इतना क्वांटिटी अब मैं प्रोक्योर करूंगा, फिर एक क्वांटिटी बाद में प्रोक्योर करूंगा, ऐसा नहीं है। एक बार डिमांड दे दिया, जो कमोडिटी का डिमांड दे दिया कि सपोज ऑलरेडी यू हैव गिवन डिमांड कि 100 पीसेस आई वांट टू प्रोक्योर, तो डिमांड दे दिया 100 पीसेस का, तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि मैं अभी 20 पीस प्रोक्योर करूंगा, फिर बाद में 30 पीस, कि बाद में फिर 10 पीस, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आप डिमांड दे दिया, आपका हायर अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए, आपका हायर अथॉरिटी का परमिशन लेके आप डिमांड दे दिया, तो डिमांड को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी ठीक है। द नेसेसिटी, थर्ड स्टेटमेंट, द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड विथ रेफरेंस टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टोटल डिमांड। जब आप टोटल डिमांड दे रहे हो कोई कमोडिटी, सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरिंग एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी है, वो डिसाइड करता है कि 200 यूनिट्स वो आप प्रोक्योर करोगे, ओके, तो उसको हायर अथॉरिटी उसको परमिशन देना चाहिए। यू मस्ट टेक द परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी, ठीक है। हायर अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, तो उसके लिए कोटेशन में हायर अथॉरिटी का साइन रहेगा और उसमें स्टाम्प रहेगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड ऑन जेम फॉर ए फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 2 years डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स। ये गलत है, 1 to 2 years नहीं, 1 to 3 years, जो भी नेचर ऑफ द कमोडिटी को देखकर 1 to 3 years एक्चुअली करेक्ट है, ये गलत स्टेटमेंट है। जेम में जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर, जो जेम एसपीवी ने जो भी सप्लायर को कि जो भी सेलर को रजिस्टर्ड करेगा उसको कितना ईयर्स तक करेगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एक्चुअली जेम एसपीवी अलाउ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेलर की पर्टिकुलर सप्लायर। उसमें क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप कमोडिटी का नेचर देख के 1 to 3 years, किसको 1 year, किसको 2 year और किसको 3 year, मैक्सिमम 3 year, तो 1 to 3 years होना चाहिए, ओके, तो फिर उसके बाद रेन्यू होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मगर फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल है, ठीक है। बायर क्या करेगा, सभी गवर्नमेंट एंटिटी के लिए आप बिजनेस एनालिटिक्स टूल को जाइए और कोई भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो, प्रीवियस ईयर वो कमोडिटी को भी आप खरीदा था, तो उसको जाकर आप देखिए उसका जेम का लास्ट जो प्रीवियस ईयर वो कमोडिटी का लास्ट परचेजिंग प्राइस क्या था, ठीक है, और आपका डिपार्टमेंट की आपका ऑर्गेनाइजेशन किस प्राइस में उसको खरीदा था, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले इसको चेक कर लीजिए, भाई कमोडिटी इस बार आप ऑर्डर करना चाहते हो, प्रीवियस बार आप खरीदे थे, तो प्रीवियस ईयर में किस प्राइस में खरीदे थे, वो आपको ये टूल में मिल जाएगा। और जेम में उसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था वो भी मिल जाएगा। तो सो इन प्रेजेंट ईयर बिफोर प्लेस द ऑर्डर फर्स्ट यू चेक at what price actually you purchased previous year through GEM and what was the last purchase price of the commodity. So ये you can get this information through business analytic tool. और सेकेंड वन है, आप जब डिमांड प्लेस करते हो, जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी को प्लेस करते हो, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते। जैसे आप 100 पीसेस चाहिए, आप बोलोगे नहीं मुझे अभी 20 पीस में खरीदूंगा फिर 30 पीस, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हायर अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। जब आप डिमांड प्लेस कर रहे हो उसके पहले हायर अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, और आपको एक कोटेशन उसका पीडीएफ एक्चुअली जब आप प्रोक्योर कर रहे हो जेम पोर्टल में, तब आपको उसका पीडीएफ को देना है जिसको एक्चुअली परमिशन has given by the competent authority and the sign of the competent authority is there and also his or her stamp. और जो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जो भी सप्लायर को जेम एसपीवी रजिस्टर्ड कराता है 1 to 3 years। अच्छा, आप बोलेंगे सर 1 to 3 years क्यों? नहीं, नेचर ऑफ द कमोडिटी का नेचर देखकर होता है, किसको 1 year, किसको 2 year, किसको 3 year, मैक्सिमम 3 year होता है, और उसके बाद रिन्यू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन जेम इन केस ऑफ डैश प्रोक्योरमेंट इज परमिटेड विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। कोई सीलिंग लिमिट नहीं है,
ऐसा क्या कमोडिटी है जिसका कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, आप कभी भी प्रोक्योर कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। जैसे सीलिंग लिमिट था, अभी थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्कस कर दूंगा, इसके लिए कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है। जैसे फास्ट था अप टू ₹50,000 आप डायरेक्ट परचेज करोगे। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज अबव 50,000 एंड अप टू 10 लाख, तब आप L1 कंपैरिजन में जाओगे। और इफ द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज मोर देन 10 लाख, तब ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल में आप जाएंगे। मगर इस तरह ये जो कमोडिटी है उसके लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। 4 ऑप्शंस: केमिकल एवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल हाइजीन एंड प्रिवेंटिव केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। आप याद रखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑटोमोबाइल्स। कोई भी ऑटोमोबाइल्स का कंपोनेंट आप खरीदना चाहते हो उसके लिए कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है, आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अमाउंट का आप ले सकते हो, राइट। तो उसके लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। अदरवाइज सीलिंग लिमिट है, आगे मैं और थोड़ा मैं ब्रीफली बता दूंगा जो 3 मेथड्स के ऊपर आप जो प्रोक्योर करेंगे, जो प्रोसीज्योर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच रूल ऑफ GFR it is mentioned that the procurement of goods and services by ministries and departments will be mandatory for goods and services available on JAM। मैं बताया था, आप रूल देख लीजिए 149, ये बेसिकली जो जनरल फाइनेंशियल रूल जेम में है, क्लियरली मेंशन है, इसमें दिया है कि यदि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जेम पोर्टल में है, तब गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग जो एंटिटीज है वो उनके लिए मैंडेटरी है कि जेम में है मींस जेम से खरीदा जाएगा, बाहर से नहीं। यदि जेम में नहीं है तब आप आउटसाइड को जाओ, जैसे आपका कोटेशन की, लोकल परचेज कमिटी की, लिमिटेड टेंडर की, एडवर्टाइज टेंडर की, ओपन टेंडर की, 2 स्टेज बिडिंग, इसमें जाइए। मगर जेम में है कंपल्सरी उसको जेम से खरीदना है, नहीं तो ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा। तो ये रूल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा जेम के ऊपर एक हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट जेम थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। जेम जो रूल 149 ऑफ GFR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, वेरी कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज है, वो जेम पोर्टल पे अवेलेबल है और इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज टू प्रोक्योर द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन द जेम, ठीक है। जेम SPV में अभी बताया था, जेम स्पेशल पर्पज व्हीकल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने ऑटोनोमस स्टेटस दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करता है। वो बेसिकली जेम SPV इट मीन्स ऑलवेज थिंक अबाउट द डेवलपमेंट एंड मैनेज द जेम पोर्टल, मैनेज द जेम पोर्टल, डेवलप द जेम पोर्टल, registered the prospective suppliers, periodic advertisement, check the credentials of the suppliers, ये सब जेम SPV देखता है, ठीक है। The procurement of goods and services by ministries or departments will be mandatory, दे दिया। जो भी goods and services जेम में है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल में है, और उसको खरीदना ही खरीदना है। यदि जेम पोर्टल में है, आप आउटसाइड से खरीद लिया तो वहां पर ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा, रिकवरी हो जाएगा, ओके। जो अथॉरिटी परमिशन दे दिया, जिसके पास फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर है, ओके, उससे रिकवरी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है, अभी करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूरा मिनट बाय मिनट आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, द क्रीडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स on JAM shall be certified by JAM SPV. Credentials means quality of the commodity, specifications, different features of the commodity, delivery status, manufacturing ability, financial status, post sale service, past service, ये सभी चेक करेगा, फिर वो पर्टिकुलर सप्लायर को व पर्टिकुलर सेलर को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो अभी मेथड को आएंगे। एक डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज है थ्रू जेम। तो डायरेक्ट परचेज में बताया था अप टू ₹50,000, ओके। यदि जो भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो उसका वैल्यू अप टू ₹50,000 है तो आप डायरेक्ट परचेज में जाएंगे, ठीक है। मगर 3 चीज में उसको फोकस करना है, आपको देखना है क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी पीरियड, ये तीनों को आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत चीज है जैसे फाइनेंशियल स्टेटस, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, पोस्ट सेल सर्विस, पास्ट सर्विस की एक्सपीरियंस, ये सब बहुत कुछ चीज है।
ये इतना ध्यान नहीं देना है आपको। तीन चीज, क्वालिटी, जिस प्रोडक्ट को आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका क्वालिटी क्या है, उसका फीचर्स स्पेसिफिकेशन, उसका डिलीवरी स्टेटस को देखना है कि टाइमली वो सेलर एक्चुअली डिलीवरी करेगा कि नहीं। ठीक है, ये तीन चीज को देखना है। तो अप टू ₹50,000 डायरेक्ट परचेज है। ठीक है, और इसमें एक नोट में दे दिया, जो ऑटोमोबाइल्स है, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट आप खरीदना चाहते हो उसके लिए कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मगर यहां पर लिमिट आ गया, अप टू ₹50,000 डायरेक्ट परचेज आपको करना है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में बताया था L1 कंपैरिजन ऑन जेम। L1 मींस लोएस्ट, ये जो हम L1 बोलते हैं ये लोएस्ट है। तो उसमें बताया था इस मेथड में क्या है, देखिए अमाउंट को देखिए, रेंज को, अबव ₹50,000 एंड अप टू ₹10 लाख। जो भी वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी आप प्रोक्योर करना चाहते हो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 एंड अप टू 10 लाख है, तो उसमें आपको क्या करना है, L1 कंपैरिजन को जाना है। L1 कंपैरिजन में एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को आपको लेना है, एटलीस्ट मिनिमम 3 मैन्युफैक्चरर्स को लेना है और कंपेयर करना है। क्या क्या कंपेयर करना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, डिलीवरी पीरियड, कंपेयर करो और जिसका प्राइस लिस्ट होगा, लोएस्ट होगा, उससे प्रोक्योर करना है। ठीक है, मगर ये कंपैरिजन में जाएगा यदि वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज अबव 50,000 एंड अप टू 10 लाख। तो L1 कंपैरिजन मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेंज में आप ऑनलाइन बिडिंग में जा सकते हो, रिवर्स ऑक्शन टूल में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनलाइन बिडिंग में और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो। कि कभी कभी बोलते हैं नहीं नहीं ओनली अबव 10 लाख होगा, जब वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज अबव 10 लाख होगा तब हम ऑनलाइन बिडिंग एंड रिवर्स ऑक्शन में जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो L1 कंपैरिजन में जाएगा, मगर इसी रेंज के अंदर यदि आप चाहते हो कि ऑनलाइन बिडिंग में जाओगे और रिवर्स ऑक्शन में जाओगे तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थर्ड मेथड ये आ गया, दो मेथड, ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन। ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन क्या है, अबव ₹10 लाख, ये भी जा सकते हो, बिलो 10 लाख भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 लाख एंड बिलो 10 लाख भी जा सकते हो, मगर ये कंपलसरी है। अबव 10 लाख मींस कंपलसरी है। ठीक है, इसमें भी जा सकते हो, इक्वल टू 10 लाख की लेस देन 10 लाख आप जा सकते हो, मगर उसमें क्या है, L1 कंपैरिजन है और आप ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में जा सकते हो। मगर कंपलसरी क्या है, यदि ग्रेटर देन 10 लाख हो गया तो आपको ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही बायर होगा। ओके, पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी परचेज करना चाहते हैं, मगर सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, तो इसमें ऑनलाइन बोली होगा। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइस कम होता जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्शन का जस्ट रेसिप्रोकल है। नॉर्मल ऑक्शन में क्या है, एक सेलर है, बहुत बायर्स है, एक सेलर है और बहुत बायर्स है, इसलिए प्राइस बढ़ता है। मगर यहां पर क्या है, ओनली वन बायर, ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, मगर नंबर ऑफ सेलर्स है। और इसमें क्या है, कोई भी सेलर्स चाहेगा तो ऑनलाइन बिडिंग में और रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। एनी सप्लायर वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन बिडिंग और इन रिवर्स ऑक्शन, ओके, द सेलर कैन बी अलाउड। ठीक है, तो इसमें एक बायर, नंबर ऑफ सेलर्स, तो इसमें क्या है, प्राइस कम होता जाएगा, प्राइस जिसका लोएस्ट होगा उससे प्रोक्योर कर दिया जाएगा, मगर इसके पहले क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस को चेक करना है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, द इन्वाइटेशन फॉर द ऑनलाइन ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन विल बी अवेलेबल ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो ऑनलाइन बिडिंग है, रिवर्स ऑक्शन है, ओनली लिमिटेड सप्लायर्स को अलाउ किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सप्लायर, कोई भी सेलर वो ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मगर जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन मैं अभी बताया था, जब बजट एस्टिमेट, कोई डिपार्टमेंट बजट एस्टिमेट करता है तो आइदर ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल को जाएगा। ओपेक्स मॉडल क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, जो भी गुड्स सर्विसेज वो डे टू डे यूज होगा। और कैपेक्स मॉडल में बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर सम एसेट्स, चाहे इक्विपमेंट है, चाहे मशीनरी है, ये जो चीज को हम मोर देन 1 ईयर यूज कर सकते हैं।
मगर जब बजट एस्टिमेट होगा वो आइदर ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल को जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वन है, जब भी बजट अप्रूवल हो जाएगा, आप जो बजट एस्टिमेशन हो गया, आप एस्टिमेट भेज दिए और गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर दिया, बजट अप्रूव कर दिया, बजट अप्रूव जब हो जाएगा उसका 30 डेज के अंदर आपको एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान करना है। प्रोक्योरमेंट प्लान मींस आप किस किस टाइम में कितना कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स को आप प्रोक्योर करोगे जेम से, तो एक प्लान बनाना है आपको। तो ये याद रखना है, जब बजट अप्रूवल हो जाएगा उसका 30 डेज के अंदर आपको एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन अभी भी बताया था, एक बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स है जिसके माध्यम से क्या है, कोई भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर आप कितना प्राइस में खरीदे थे। इफ यू वांट टू suppose the particular government entity want to purchase the commodity, first through this tool the government entity must check that previous year actually at what price actually the commodity was purchased through GEM, and last one what was the last purchase price of the commodity on GEM। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स टूल से पता चलेगा। तो बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमोडिटी आप इस टूल में जाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर आप कौन सा प्राइस में खरीदे थे और उसका लास्ट परचेज प्राइस क्या था। और इसमें मैं बताया था, जब आप डिमांड प्लेस कर रहे हो उसको आप स्मॉल क्वांटिटीज में आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार डिमांड कर दिया 200 यूनिट्स मींस आपको 200 यूनिट, आप ये नहीं बताओगे कि 200 यूनिट्स तो मैं डिमांड कर दिया मगर उसका पार्ट पार्ट में प्रोक्योर करना चाहता हूं। 200 यूनिट्स आप डिमांड कर दिया कोई गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी, मगर वो नहीं चाहेगा कि डिवाइड जैसे 30, 40, 50 की 20 ऐसे आप परचेज प्रोक्योर करोगे, ऐसा नहीं। 200 यूनिट्स पूरा डिमांड देना है, उसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी डिमांड प्लेस करते हो उसके पहले हायर अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो ये था जो मिनट बाय मिनट एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो कि रूल 149 है और जेम वो बहुत इजी है, यही सब अमाउंट है, ऐसा नहीं है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बहुत डीपली बहुत अंदर जाकर क्वेश्चन पूछता है, तो मैं ट्राई किया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सो माय फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar to all of you.